So hello everyone, I have already uploaded one short first part and this is the second part. Now let's start without wasting our much of time. Here I have the question number 7, which is Regulating Act of 1773. Yes, of course guys, I am talking about Introduction to the Constitution, which is a subject of a political science related to BA political honors and English honors. It's a GE subject, okay? So if you are any programmer course, then you can also read this, okay? Now without wasting our much of time, directly let's begin to this video. And I have already uploaded Charter Act, alright, all of the 3 acts, 1813, 1833 and 1853 also. 1873 is remaining and I will upload it later, okay? By the way, I have also uploaded Pitt's India Act, and Regulating Act is also complete, but in this video I will complete it again because as I have said that this is short notes, okay? Because on the long question answer topic I have already made it. Now, Regulating Act of 1773. The Regulating Act of 1773 was the first law made by the British government, okay? This is the first law made by British government, alright? To control East India Company. As I have said that time British government rule is whole over on the country, okay? Last we can say 2 or 3 century they were ruling that time, okay? And for what? And when we are talking about 1773, the British government made the first law, which is called Regulating Act, to control the East India Company, okay? Whole over, control, hand over to the East India Company to British government. They made this rule. Before this, the company was doing bad work, okay? There was corruption and mismanagement. Of course, it is because that time not any government work, okay? Without any ruler, they are ruling. So, it's genuine, okay? It is called a genuine mistake. It's happened already. Now, before this, the company was only focused on trade. As I have said that about East India Company, that time a lot of corruption system also, mismanagement also, and that time East India Company was only focused on trade. But later it became very powerful and started ruling large parts of India. Later when the British government made this rule that time, okay? By the way, one major provision change was that Governor of Bengal was made the Governor General of Bengal, with control over the both Bombay and Madras presidencies. Of course, I am talking about Warren Hastings, who was the first Governor General of Bengal, okay, who was become that time the first General of Bengal, okay, Governor General, remember. To help him, a 4-member of Executive Council was elected, created by the way, not elected because election system came later, okay. Decisions were taken by the majority vote, not by the Governor General alone, okay. Majority vote means citizens vote, okay. According to the citizens, according to the majority, it was taken by them. Now, this act also established the Supreme Court in Calcutta, okay, by the way in 1774, and of course this is the first Supreme Court, I mean first British style court in India, okay, and had 1 Chief Justice and 3 judges, okay. This court aimed to provide justice according to the British laws, okay. The aim is to provide justice but according to the British law, okay, in India. Now, conclusion, which is so crucial for our examination point of view. The Regulating Act 1773 was the first step towards proper control of British rule in India. It marked the beginning of parliamentary control over the East India Company and laid the foundation for future laws and reforms in India. In England, the company's directors had to report their actions to the British government regularly, alright? Now, this is about Regulating Act. By the way, let's discuss in short also. Regulating Act of 1773. First step by British to control East India Company. Governor of Bengal became Governor General of Bengal
And first one is Warren Hastings. Okay, remember the name. Don't be confused between Warren Hastings and between I will tell you later. Supreme Court established in Kolkata. First, it is the first law, as I have said, that first court, British style court in India, which have that time total 3 judges and 1 chief justice. Okay, British Parliament, you can say a full control of the company, East India Company. Okay, they made it. Now, Pitt's India Act, which is our next topic. Pitt's India Act was passed in 1784. Okay, by the British Parliament to improve the control over the British India Company's work in India. The act made a new body called the Board of Control. The job of this board was to guide and supervise the company, especially in political and administrative matters. Okay, this act clearly separated business and ruling functions. When I am talking about business, it is supposed to be commercial, and when I am talking about ruling, it is supposed to be political. Okay, in short, the act clearly separated commercial and political, okay, system fully. Like business and ruling functions have been separated at that time. With the help of Pitt's India, 1784 Act, okay. Remember the time also, regulating act is 1773 and Pitt's India Act 1784, okay, after 11 years. Alright, after 10 years on the 11th year. Now, the East India Company could still do business, but the British government got more control over Indian governance. Now, the company followed the order of the British government in political matters. Okay. Now, the company only followed the orders of British government in the company or political matters. Alright. Now, this act made British rule stronger and more organized in India. Of course, let us discuss board of control. Now, इस बोर्ड का नाम था कंपनी. इस बोर्ड का एक तरह से जो काम था ना, वो था कंपनी पॉलिटिकल डिविजन्स और रूलिंग को सुपरवाइज करना. ओके, सुपरविजन का काम था. आज एज आई हैव टोल्ड यू दैट टाइम, पॉलिटिकल डिविजन्स एंड रूलिंग, पॉलिटिकल एंड रूलिंग इन शॉर्ट बिजनेस, कॉमर्शियल वर्क, रूलिंग, पॉलिटिकल वर्क. ओके, इन दोनों को ही सुपरवाइज करना, सुपरविजन, that ensure करना that how they are working. Okay, how they both were working that time, because I'm talking about 1784. Okay, that time. इस एक्ट ने कंपनी के बिजनेस और पॉलिटिक्स के कामों को अलग अलग कर दिया था. एज आई हैव सेड यू, डिवीजन ऑफ बोथ ऑफ द वर्क. ओके, सेपरेटेड, दे बोथ हैव बीन सेपरेटेड. बाय द वे, बिजनेस का काम था, बिजनेस का काम एक तरह से कंपनी के पास था. ओके, what exactly business through company. Okay, business company both are related to each other that time. लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल, जो भी हमारे राजनीतिक डिसीजंस कहते हैं ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था उस टाइम. ओके, इन शॉर्ट जो भी हमारा बिजनेस था वो सब नॉर्मल बिजनेस, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी. लेकिन जो भी पॉलिटिकल मैटर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स थे, वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको इंश्योर किया करती थी. ऑलराइट, दैट टाइम. इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन अफेयर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल बन गया. ओके, एंड उनका रूल और भी ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रांग हो गया इन आवर इंडिया. ओके, नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1813. बट बिफोर चार्टर एक्ट, लेट अस डिस्कस इन अ शॉर्ट वे दिस इंडिया एक्ट 1784. क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. रिमेंबर, क्विक रिविजन दिस इज कॉल्ड. ओके, created board of control in India. Political matters now under British. Whole of the political matters now under British, and business under company. Company what? East India Company. Okay, because we are talking about East India Company, that is why all of the business matters goes to under the East India Company, and political matters come under British control. Okay, the British government. Now, company did trade, British did governance. East India Company did trade and British did governance. So don't be confused in it. Okay, dual control is start, as I have said that dual control is start was that time. Okay, this time for now. Charter Act of 1813. Okay,
passed in 1813. Now, main focus is on trading and education. चार्टर एक्ट का मेन फोकस किस पर था? ट्रेडिंग एंड एजुकेशन पर. एंड वी कैन से ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड इन इंडिया. क्या खत्म किया था इन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड इन इंडिया को फुली एंडेड, फुली फिनिश कर दिया गया था. एंड फर्स्ट एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड. टी और चाइना ट्रेड को छोड़कर बाकी जितना भी मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, उसके ट्रेडिंग के ऊपर उसे फुल कंप्लीट फिनिश कर दिया गया था. ओके. आफ्टर दिस अदर ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया. इसके बाद से अदर जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्हें भी अलाउ कर दिया गया इंडिया पर ट्रेड करने के लिए. मतलब अलाउ मीन्स परमिशन मिली उन्हें, या दैट दे कैन ऑल्सो ट्रेड. ओके, इफ दे वांट दे कैन ट्रेड. कंपनी वाज सेड टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन इन इंडिया पर ईयर. As I have said that main focus is on trade and education. That's how. Now, let's talk about in a short way what exactly Charter Act 1813. By the way, company का trade monopoly and except with China and tea. Okay. Missionaries allowed in India. As I have said that missionaries allowed in India. Missionaries means other Britishers. Okay, outsiders allowed in India. Right now, outsiders also supposed to be Britishers only. Okay, only Britishers. Education के लिए fund mandatory किया गया उस time. Okay, as I have said that company was said to spend money on education. Means education के लिए fund को mandatory किया गया. That yeah, it is really important. You should give. Okay, you should spend money for your fund on education per year. That's कंपनी के बजट में से उन्हें दिया गया. ओके, कंपनी के बजट नो, वी कैन से गवर्नमेंट के बजट में से. ओके. नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ओके, पास इन 1833. ऑलराइट. नाउ 1833 का जो मेन फोकस था वो था सेंट्रलाइजिंग पावर एंड एंडिंग बिजनेस. ओके, पावर को सेंट्रलाइज करना एंड बिजनेस को एंड करना. ओके. एंड ऑफ कोर्स उनका जो मेन फोकस था उन्होंने अपने फोकस पर काम भी किया, उसे इम्प्लीमेंट भी किया. दिस एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विच इज सो क्रूशियल. ओके, होल्ड ऑन. एज आई हैव सेड दैट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्टली वॉरेन हेस्टिंग्स. ओके, गवर्नर जनरल नॉर्मल वी कैन से गवर्नर ऑफ बंगाल से वो जनरल बन गया था. बट नाउ गवर्नर ऑफ जनरल बंगाल से वो क्या बन गया? डायरेक्टली इंडिया. एंड द फर्स्ट नेम इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बंगाल दैट टाइम वॉरेन हेस्टिंग्स. एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल ओवर द इंडिया नाउ इट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग. ओके, who was become the first Governor General of India. Now, in whole over India was only one Governor General control. Was Lord William Bentinck. Remember the name, Lord William Bentinck. So crucial name. Okay. In fact, you should highlight with a highlighter. No, in your exam you can't use any highlighter. You can highlight with a pen. Okay. Dash mark, circle you can make square shapes type. Okay, which makes your answer so attractive, effective, of course. Impression. Okay, to generate impression you can do this. Now in whole over India has only one Governor General of control. Okay, East India Company was stopped from doing any business. The company became only an administrative and ruling body, no more trading. Okay, because इनका जो मेन फोकस था वही था इस बिजनेस को एंड करना. दे देंगे. मेन आइडिया gave more political power and ended company business role. Of course it is. Now, conclusion between Charter Act of 1813 and 1833. But before the conclusion, I will now give you a short revision. Okay,
चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इंडिया के लिए सिंगल गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया. कंपनी became only administrative body as I have said that. No more trading. Centralization started. Alright. Now, conclusion between Charter Act of 1813 and 1833. 1833. The Charter Act of 1813 and 1833 were started the important steps. Okay, were both made the important steps in the growth of British control over India, but their focus was different. Means they both have started their steps to make British more growth, okay, and more control over India, but the main problem is this: their focus was so different, okay, on a different ways. The 1813 Act ended the East India Company's trade and monopoly, except tea and China, and allowed Christian missionaries and education funding in India. And of course, the next 1833 Act ended the company's business role completely and gave more political power to one central authority, the Governor General of India, who was Lord William Bentinck. Okay? Yes. Now, both acts helped to make British rule stronger and more centralized in India. The first act changed the way trade and education worked, and the second act changed how power and governance worked. Okay, in short, as when we are talking about that 1813 focused on trade and education, and 1833 focused on political control and administration. Okay, now guys, यहाँ पर एक चीज आई गेस आपने नोटिस आप में से कुछ नहीं की होगी, that I am talking about centralization. I have spoken this word many times. Okay, since I have started this video, I have spoken many times. I also have noticed right now. So, what exactly centralization is? When I am talking about any word centralized, what exactly centralized, you should have a knowledge about this. Okay, because if you have no any knowledge regarding centralization, then how will you able to understand? How will you able to learn? How will you able to imagine these all in your real life? Okay, because this is historical process. Okay, I know it's for science, but it's when I'm talking about historical now. Okay, that is why we should have a knowledge of each and every word. Now, when I'm talking about centralization, centralization means power is controlled by one central place or authority, instead of being shared with smaller or local parts. कहने का मतलब मेरे ये है that जब सारी पावर एक कंट्रोल अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और स्टेट या लोकल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, मीन्स सेंट्रलाइजेशन का मेन फोकस ये है सारा काम एक ही अथॉरिटी संभाले, बाकी जो भी लोकल जो काम डिवाइड ना हो. ओके, नो एनी डिवीजन ऑफ वर्क्स. सारा जो काम है जितने भी हमारे इंडिया का वर्क है वो सारा एक ही संभाले. कौन संभाले? एक ही अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी संभाले. ओके, दैट्स ऑल. नाउ लेट्स कम इनटू आवर नेक्स्ट, which is Charter Act of 1853, which is also so crucial and one of my favorite acts as I have ever studied. Okay, now main focus on open exams for jobs. Which jobs? Private? No, of course I'm talking about government jobs. Law making body added and clear division of work. The Charter Act 1853 made some important changes in the British rule in India, like it introduced open competition for Indian Civil Services exam, ICS exam I'm talking about. Okay, this means that now anyone including Indians also could appear for exams and get government jobs based on their merit. Means if you are talented, if you have power, if you have knowledge, if you have
education, then you can directly get this job, which is I'm talking about government job. And these rules I'm satisfied. And I am totally satisfied with this rule, okay? Because this rule is applying right now also. If you really want to, we can say, go and join any government job, if you really want to get it, you should apply your mind and apply your knowledge. As I have said that this is Educate India channel, and in this channel I have already said that, and I have made this video that this channel is not only for the sole and beginner students. In fact, this channel is for those students also, those aspirants also who are preparing for government jobs. Okay, now that's all about. Let's come to directly on our point, and we are on the Charter Act of 1853. Okay, now it also separated the work of making laws, legislative and running the government executive. इन्होंने ये बहुत ही बड़ा काम किया, इन्होंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के कामों को अलग अलग सेपरेट किया, एंड दैट्स हाउ दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर. ओके, इसे सेपरेशन ऑफ पावर का नाम दिया गया, और इस नाम को देने का एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है दैट ये चार्टर एक्ट में पहले ही डिसाइड हो गया था दैट या लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों का ही वर्क अलग अलग होगा, सेपरेट होगा. ओके, सो सेपरेशन ऑफ पावर तो बस ऐसे पहले से उनका नाम दे दिया गया दैट या दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं. लेकिन जो इसका मेन रीजन है वो यही है. ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, बिकॉज यहाँ पर सेपरेट ऑलरेडी हो चुका है. इट ऑल्सो सेपरेटेड द वर्क ऑफ मेकिंग लॉज, लेजिस्लेटिव एंड रनिंग द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव. ओके, ये now they made a legislative council was helped them to make the law of governor general. Okay, they made a legislative council was helped them to make the law of governor general. Of course they made. Now why was charter act passed every 20 years? यही से हमारा एक क्वेश्चन जनरेट होता है, बिकॉज आई डोंट नो दैट कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. ओके, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ सिलेबस, आई नो वेरी वेल. बट यहाँ तक जैसे कि यहाँ पे हम आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर 20 ईयर्स के बाद हो रहा है. ओके, लाइक पहले ये 1813 में हुआ, देन 1833 में हुआ चार्टर एक्ट, और फिर ये 1853 में हुआ. लाइक एग्जैक्ट 20 ईयर्स के बाद ये हो रहा है. एंड इसका नेक्स्ट भी हुआ है, 1873 में हुआ है नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट भी इफ यू वांट देन यू कैन रीड. बाय द वे ऑफ कोर्स यू शुड रीड, बिकॉज नॉलेज है, नॉलेज जितना गेन करे उतना ज़्यादा अच्छा है. ओके, so let us discuss about Charter Act of 1873 also. But before this, एक बार 1853 का short revision कर लेते हैं. Okay? Yes, of course. Now, here is the quick revision series. ICS Civil Services में competition introduce किया जाना, and legislative and executive को separate करना, separated. That's all. Okay? Of course, when I'm talking about 1873, okay? Now, let us discuss too. Okay, all right. One more problem is this, that there is no any act of charter of act of 1873, because I guess ये जो act है 1873 में नहीं आया था, 1853 तक ही फिनिश हो गया था, खत्म हो गया था. इसके बाद से फिर हमारे दूसरे एक्ट सामने आए, लाइक इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1861 में हुआ था. ओके, हमारे बुक में गिवन भी है ये, या इट इज गिवन. ओके, सो 1853 तक ही रहा. बाय द वे अभी 3 एक्ट के बारे में ही हमने पढ़ा, लेकिन 20 ईयर्स का तो डिफरेंस है ना. सो क्यों है वो भी जान लेते हैं, ओनली 2 मिनट्स का है. ओके, बिकॉज द ब्रिटिश पार्लियामेंट गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट to rule and trade in India for a fixed period of time. Of course guys, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया था कि आप इंडिया पे रूल करो, इंडिया पर ट्रेड करो, लेकिन एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे. ओके, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आपका बना हुआ था, विच इज 20 ईयर्स यूजुअली. 20 ईयर्स के बाद, इसी वजह से ना हर 20 ईयर्स के बाद ये चार्टर एक्ट हमारा सामने आया. ओके, बिकॉज 20 ईयर्स का ही टाइम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए, इंडिया के ऊपर ट्रेड करने के लिए. ओके, और किसने दिया था उन्हें ये पीरियड ऑफ टाइम? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया था. ओके, दैट्स हाउ एट द एंड ऑफ एवरी 20 years the British. Okay, by the way, important to note is that after 1858 Act, the next big change was the Government of India Act 1858, because the revolt of 1857
and happened and the British Crown took full control ending company rule. यहाँ पर एक ये भी रीजन रहा है ऑफ कोर्स आफ्टर द 1858 एक्ट. ओके, 1858 एक्ट के बाद एक बिगेस्ट चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ? एज वी ऑल नो दैट 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था. ओके, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई गेस आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा ये टॉपिक. ओके, 6th 7th 8 इन तीनों क्लासेस में से किसी न किसी एक बुक में आपको मिलेगा. सिविक्स या सिविक्स और नो हिस्ट्री, आई गेस इन्हीं में से किसी एक बुक में आपको हिस्ट्री में ही मिल जाएगा ये. ओके, ये टॉपिक मिलेगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, इट्स रियली क्रूशियल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स और इवन पॉल साइंस ऑल्सो. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ एक्ट. सो क्या हुआ था ना उस रिवॉल्ट 1857 में, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे उसके बारे में. ओके, बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है एंड दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, दैट इज वाई. बट वी विल टॉक समहाउ लाइक उस टाइम ना ब्रिटिश का जो क्राउन है वो फुल कंट्रोल आ गया था क्वीन विक्टोरिया के पास. ओके, एंड यहाँ से क्वीन विक्टोरिया के पास फुल कंट्रोल आ गया. ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया. एंड अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की. ओके, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कहानी है वो यहीं तक थी. यहाँ से क्वीन विक्टोरिया आ गई ब्रिटिश पर अपना रूल, एक तरह से रूलर ऑफ ब्रिटिश वी कैन से. ओके, अपने रूल को बनाने के लिए. नाउ Government of India Act 1858 started finally. After the revolt of 1857, the East India Company was removed. East India Company को fully remove कर दिया गया. Okay, as I have said that British Crown Queen Victoria, you remember the name. Okay, British Crown Queen Victoria took direct control. उन्होंने डायरेक्टली कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया सारा. ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर ऑफ जनरल इंडिया जितना भी था सारा कंट्रोल उन्होंने डायरेक्टली ले लिया अपने ऊपर. ओके, क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया. कहाँ पे किया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन. उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम का एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया इन इंडिया, आई मीन फॉर इंडिया, इंडियंस के लिए. और वो कहाँ पर उन्होंने जनरेट किया? ब्रिटेन में किया जनरेट. ओके, ये उन्होंने जो अपना जो ऑफिस जनरेट किया वो ब्रिटेन में किया. ओके, रिमेंबर द ऑफिस नेम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आई मीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन. ओके, गवर्नर जनरल बिकम वाइस रॉय ऑफ इंडिया. एज आई हैव सेड दैट कि गवर्नर जनरल भी फिनिश हो गया उस समय तक. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, वो भी फिनिश हो गया. उनका भी शासन एक तरह से फिनिश हो गया. एंड गवर्नर जनरल बन गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया. ओके, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है वाइस रॉय ऑफ इंडिया की. एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग. ओके, द नेम इज लॉर्ड कैनिंग. सो रिमेंबर द नेम बिकॉज नाम में होती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन. अगर एग्जाम के टाइम में हमने नाम आगे का पीछे कर दिया सो कंफ्यूजन होगी. बाय द वे लेट्स रिकैप द नेम ऑल्सो. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स. ओके, या वॉरेन हेस्टिंग्स थे. एंड ये किसने बनाया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. किसने क्रिएट किया था गवर्नर ऑफ बंगाल को? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट में. ओके, 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था. वहाँ पर हमने पढ़ा था दैट वॉरेन हेस्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. एंड नाउ उसके बाद से जैसे कि मैंने कहा था कि इंडिया में फिर चेंज हुआ. गवर्नर जनरल ऑफ एक्ट बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, आई मीन बंगाल से वो इंडिया में कन्वर्ट हो गया. सो ये काम किसने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की बात हो रही है. सो उस टाइम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक. ओके, डोंट फॉरगेट द नेम. The name is Lord William Bentinck. And the first one more point that ये जो Lord William Bentinck का ये जो चेंजिंग हुआ था ये कौन से एक्ट में हुआ था? सो ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में. ओके, रिमेंबर द एक्ट ऑल्सो. आई शुड ऑल्सो रिमेंबर. ओके, द एक्ट नेम इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ओके, वहाँ पर इस चेंज को एक्जैक्टली चेंज किया गया था सेंट्रलाइजेशन पावर में. ओके, ऑल राइट. So that's how this is also a very crucial topic for you to, for me to now. That's how. Yeah, of course we are on the Government of India Act. So that's how this is all. You know, it ended the company rule and open and began
डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, डायरेक्टली ब्रिटिश रूल इंडिया पे हो गया, जितनी भी कंपनियां थी वो सारी बंद हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी मेन थी वही बंद हो गई। ओके, एंड ब्रिटिश का डायरेक्टली रूल हो गया इंडिया पर। सो दैट्स हाउ दिस इज द एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। ओके, सॉरी 1858, वी आर टॉकिंग अबाउट 1858 बिकॉज 1861 में जो काउंसिल एक्ट स्टार्ट हो गए थे ना, तो ये 1858 की बात है। ओके, जस्ट 1 year आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बाय द वे, शॉर्ट रिकैप तो बनता है इसका भी, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट रिकैप। आफ्टर 1857 revolt, company removed which company? East India Company, of course. ब्रिटिश क्राउन ने रूल ले लिया। कौन से ब्रिटिश क्राउन ने रूल लिया था? क्वीन विक्टोरिया ने। वाइस रॉय रिप्लेस गवर्नर जनरल, फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस में बदल गए? वाइस रॉय में। और वाइस रॉय को रिप्लेस किसने किया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया को लॉर्ड विलियम बेंटिंग से लॉर्ड कैनिंग ने रिप्लेस किया था। ओके, सो दिस इज हाउ अबाउट द पॉइंट। नाउ डायरेक्टली लेट्स कम ऑन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। Indians were included in the law making process for the first time. So guys, यहाँ से स्टार्ट हुआ था इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट। ओके, गवर्नमेंट जितने भी ये लॉ वगैरह बन रहे थे उस टाइम्स पे, सो स्लोली इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 1857 के रिवोल्ट के बाद से स्टार्ट हो चुका था। ओके, नाउ इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम in which act? Of course, in Indian Council Act of 1861 में some Indians were nominated to the Viceroy Council and legislative work became more consultative that time. Okay, marked the beginning of Indian involvement in law making. Of course, by the way, इसका सर्टिफिकेट मैं एंड में करूँगी जब हम सारे इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद। ओके, बिकॉज ये भी 3 है। बाय द वे, next is Indian Councils Act 1892. Okay, इसमें गाइस क्या हुआ था? इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ लॉ मेकिंग प्रोसेस में। 92 में क्या हुआ? 1861 में तो वैसे इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, 92 में ये हुआ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ओके, इंडियंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट, और भी इंडियंस आए, उन्हें ज्वाइन करने का मौका मिला और ये इंक्रीज हुआ। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हुए। अलाउ बजट डिस्कशन बट नो वोटिंग राइट्स। बजट का डिस्कशन तो अलाउ किया गया इंडियंस को, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं दिया गया अभी भी। मीन्स अभी भी इंडिया ना एक तरह के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसे नहीं माना गया पूरी तरह से। ओके, मीन्स इंडियंस को अभी भी वो ये सिस्टम अलाउड नहीं था कि वो अपने लीडर्स को वोट करके इलेक्ट कर सके। नो एनी वोटिंग राइट्स दैट टाइम। ओके, स्टिल इंडियन वर नॉमिनेटेड। इंडियंस नॉमिनेट तो हो गए लेकिन इलेक्टेड नहीं बन पाए। ओके, बट नॉट इलेक्टेड। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टिल इंडियंस वर नॉमिनेटेड बट नॉट इलेक्टेड। अ स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड, मोर इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ओके, यहाँ से एक छोटी सी स्टेप स्टार्ट की। ओके, फॉरवर्ड और आगे बढ़ी। नाउ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स का नाम दिया गया है। ओके, सो ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ना ही किसी जानवर का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्ट का नाम है जिसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को, कौन से एक्ट को? इंडियन काउंसिल एक्ट के लास्ट नंबर विच इज 1909 में जो एक्ट हुआ था उसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स का नाम दिया गया है। ओके, सो इस टाइम ऐसा क्या हुआ? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस। इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ एंड बट वोटिंग वाज लिमिटेड। लेकिन जो वोटिंग थी ना वो लिमिटेड थी। ओके, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। दिस इज द मेन रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। यही मेन रीजन है जहाँ जिसकी वजह से ना इंडिया और पाकिस्तान का एक वजह से डिवीजन हुआ। ओके, दिस इज द मेन रीजन। उसमें काउंट होना चाहिए इसे भी। सो क्या किया ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस तो किया इलेक्शन, लेकिन वोटिंग जो थी वो लिमिटेड थी। ओके, एक तो फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्टेड को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया
इलेक्शंस को, लेकिन उन्होंने वोटिंग को लिमिटेड रखी, चलो कोई बात नहीं, ये भी चलता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ओके, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शन बनाया गया, यानी कि अलग इलेक्शन बनाया गया कि मुस्लिम की जो वोटिंग होगी वो अलग से होगी। अलाउिंग दैम टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, मीन्स उन्होंने ही इंडियन मुस्लिम्स को, हिंदू मुस्लिम को फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग डिवाइड किया। ओके, सो वहीं से स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन की इस एक्ट की वजह से ही मुस्लिम्स को एक तरह से अलग होने लगा कि नहीं, हमें अलग से चूज किया जा रहा है। ओके, हमें अलग ट्रीटमेंट दी जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी बात नहीं कि उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, बट उन्हें ट्रीटमेंट दी जा रही थी, लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अलाउिंग दैम टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यही से स्टार्ट हुआ मुस्लिम के माइंड में कि यहाँ हमें पाकिस्तान के ऐसे बना था, बट स्टार्टिंग यहीं से हुई है। मोर इंडियंस वर गिवन प्लेस इन काउंसिल्स, काउंसिल्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बहुत सारे इंडियंस को जगह दी गई, बहुत सारे इंडियंस आए, उन्होंने ज्वाइन किया इसे। अब क्या कहा था, मैंने बताया था ना एग्जाम्स के बारे में, ICS के एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय जो गवर्नमेंट एग्जाम होता था, तो उसी के फॉर्म में कब निकला था, बाय द वे 1853 एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट में निकला था। ओके, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसी की वजह से उन लोगों को और भी ज़्यादा उनके नॉलेज की वजह से उन्हें काउंसिल्स में जगह दी गई। एंड स्टार्टेड इलेक्टोरेट पॉलिटिक्स बट ऑल्सो क्रिएटेड रिलीजियस डिवीजन। जैसे कि मैंने बताया, इलेक्शंस तो स्टार्ट हो गए, लेकिन इलेक्टोरेटेड पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गए, बट क्रिएटेड रिलीजियस डिवीजन। अब क्या क्रिएट हो गया, एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। कौन सी प्रॉब्लम, रिलीजन का डिवीजन। ओके, जितने भी हमारी ये रिलीजन है उनका डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, मीन्स हिंदू मुस्लिम ये सारे अलग अलग हो गए। ओके, बिकॉज जैसा ये सिस्टम निकला वोटिंग का, सब कुछ डिफरेंस हो गया, सारे लोग अपने आप को डिवीजन करने लगे, डिवाइड करने लगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 विच इज कॉल्ड मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। अब ये मत पूछना कि इसका नाम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स क्यों पड़ा। ओके, अब ये किसने डाला, दैट डजंट मैटर, नाम है, लर्न कर लो, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, इंसान के नाम से लर्न कर लोगे, ये हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा था कि तीनों काउंसिल्स के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी ये शॉर्ट रिकैप। लेट्स टेक इट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड 1892 का रिकैप एक साथ लेते हैं। इंडियन को काउंसिल्स में ऐड किया गया। 1892 में बजट पे डिस्कशंस अलाउड हुए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा बट पावर कम थी। ओके, बट रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ गई थी ना, तो काम निकल जा रहा था। ओके, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फर्स्ट टाइम इलेक्शंस अलाउड। एंड यही से गाइस हमारा स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से न्यू वे टू इंडिया इन्वॉल्वमेंट। ओके, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस, और द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो भी थोड़ा लेंथी हो चुका है ऑलरेडी। ओके, एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो सो मच लेंथी। पार्ट 3 में आई होप कि ये कंप्लीट हो जाएगा, चांसेस तो है होने की। पार्ट 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। ओके, यस, दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।